Good morning, everyone. Today we are to recover the next point of your next continuing model, the model number one, and the next point are the remaining like attitude, study of personality, learning attitude in briefly. And this brief study, we are maximum recover the today's model in today's lecture. And in new lecture, we are study from the new model, the brief study. Okay, then let's start. Main the point are the studies to recover the study material of the number of contents, and these contents are the first is we are today the first point is the personality. As per the definition, the personality is the brief defined would be the personality made by the characteristics pattern of how the feeling and behavior that make a person unique in additional of this the personality in short काय त्याने बोलने से प्रयत्न किया क्या बोला है उसने कि पर्सनालिटी ये कंसेप्ट क्या है कि ब्रीफली किसी पर्सन के अंदर जो डिफरेंट पार्ट होता है उस पार्ट को स्टडी करना एंड दिस स्टडी इज नोन एज द पर्सनालिटी इट मींस किसी द पर्सनालिटी इज डिपेंड ऑन द यूनिक कैरेक्टरिस्टिक जो डिफरेंट होता है इन ईच अदर किसी को ज्यादा खाना पसंद है किसी को ज्यादा सोना पसंद है किसी को ज्यादा उसना स्टडी करना पसंद है किसी को ज्यादा traveling person there with the this are the characteristic of pattern of your behavior and this behavior are unique in its different. In addition, these personalities arise within the individual remaining facilities are some other definition उसने और क्या बोला हुआ है the personality refers the individual characteristics pattern emotions and all यानी तुम्हारे behavior सोचने उठने बैठने का जो ढंग होता है तुमचं उठण्या बसण्याचं क्रिया करण्याचं क्रियापद आणि त्याच्यावर होणारी क्रिया ह्याचा जो वातावरण होणार आहे ह्यालाच त्याने काय बोललेलं आहे इन शॉर्ट युअर पर्सनॅलिटी डिटरमाइन द पर्सनॅलिटी फॅक्टर अफेक्टिंग ऑन पर्सनॅलिटी ते कुठले कुठले फॅक्टर आहेत ते अफेक्टिंग करतात ऑन द एव्हरी डिफरंट पॅटर्न द फॅक्टर विच आर कॉन्ट्रीब्यूट टू पर्सनॅलिटी दे आर द फर्स्ट हेरिडिटी फॅक्टर एन्व्हायरमेंटल फॅक्टर फिजिकल फॅक्टर अँड सिच्युएशन फॅक्टर आणि हे काय आहे ते ब्रीफली आपण स्टडी करणार आहोत and these are the number one is hereditary factor. Hereditary factor play a very important role in the major determinant factor. It is factor hereditary factor are the one of that that determine the time of consumption. This the factor is not only factor of physical factor and person but intelligence of the level. यानी क्या बोल रहे हैं क्या बोलने की ऐसा फैक्टर जो तुम्हारी टाइम कंज्यूमिंग यानी इट मीन्स तुम्हारे कंटाला आना किसी काम को देख के तुम्हारी उत्साह को जांचना और उस उत्साह से वो करना देन उसमें कंज्यूमिंग टाइम का इफेक्ट होना अगर तुम्हें कंटाला आता है तुम्ही जर कंटाळून जाता कुठल्या गोष्टीने कंटाळा आता है that is you are the lazy in work and lazy in work is the measuring in time as compared to you are ready for this work it is not lazy you are not a lazy for this work then you are recognized that you are the ready for this work this is the personality hereditary factor and one of them is the determine and the conception the factor only affected on physical features of person कौन सा फिजिक्स है कि इंटेलिजेंसी वो कितना इंटेलिजेंट है ऑन दिस वर्क अब वो कैसे समझ में आने वाला है कि वो उस काम को कितनी उत्साह से करता है कितना टाइम कंज्यूम करके रहता है कम कम वक्त में कौन करेगा जो उस पर काम में एक्टिव रहेगा ज्यादा वर्क और मैक्सिमम एक्सपेंडिचर कब बनेंगे जब उस पर्सन को उस वक्त में काम में कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा the examples the example how the hereditary factor is determined such as huge and significant part of the individual personality can be visible the observing the children many children behave the extremely how these parents do similar twins the siblings also have the lot of thing in common बघा याच्यात सिंपल त्याने सांगितलं नाही
पॅरेंटला आपण इझी बघू शकतो. पॅरेंटला कॉपी कोण करू शकते लवकर? तर त्याची मुलं. एका आई वडिलांना कॉपी करणारी त्याची मुलं असतात. कारण काय आहे की ते जास्त वेळ त्यांच्या बरोबर असतात. बाहेरचा लवकर कॉपी करेल का? नाही करणार आहे. इट इज अ टाइम कन्झ्युमिंग मोमेंट. Then the second factor is environmental factor. This environmental factor, this environmental factor is a personality. This environmental factor that the individual lives in has a major impact on his personality. The culture environment establish attitude, values, norms, and the participation of individual. Based on the culture is tradition, differences in the right of the wrong and form in the individual. This is environment factor is including neighborhood, person, living, his school, college, university, workplace, model. In short, क्या बोलने का उसने एक्सप्लेन किया है कि एनवायरमेंट जहां तुम रहते हो उधर के लोग या उधर का जो फैक्टर है इट इज योर इफेक्टेड ऑन पर्सनालिटी. हाउ कैन इट इफेक्टेड ऑन पर्सनालिटी? देन वहां जो लोग कपड़े पहनते वैसे तुम्हें पहनने का ज्यादा शौक है. इट मीन्स अभी लेडीज के लिए टॉप एंड लेगीज का शौक आ गया है क्योंकि जो मैक्सिमम सोसाइटी आर एक्सेप्टेड दिस क्लॉथिंग सिस्टम, वेयरिंग सिस्टम एज कंपेयर टू बॉयज में शर्ट से ज्यादा टी शर्ट्स को ज्यादा फॉलो किया जा रहा है कि मैक्सिमम लड़के टी शर्ट ज्यादा पहनते हैं ऑन योर टिल योर एज, तो उसको ज्यादा वेटेज है. देन रेडीमेड इज 90% प्रीफर्ड एज देन मेकिंग. हम रेडीमेड को ज्यादा प्रीफर कर रहे हैं, सिलाई करके नहीं ले रहे, टेलरिंग वर्क को कम कर रहे हैं. शूटिंग से रेडीमेड इट्स आर इजी, वो सस्ते में मिलता है, कंपैरिजन है. इट्स एटीट्यूड, वैल्यूज ऑफ नॉर्म्स. नॉर्म्स क्या है तब कि हमें किस तरह मिल रहा है, कौन कैसे इस्तेमाल करता है. Participation is an individual based on the cultural and the traditional different sense, the right and wrong frame in the individual. This environment factor also including the neighborhoods. यानी तुम्हारे बाजू वाले को देख के हो रहा है कसं होतं, and a person live in his school college. त्याच्याबरोबर तो व्यक्ती जो त्याच्या आपल्या बरोबर स्कूल कॉलेज मध्ये राहतो त्याचं राहणे खाण्याचं ढंग बघून आपण घरी जाऊन बोलतो आणि तसं आपल्याला केलं जातं. आपण जसं वागण्याचा प्रयत्न करतो. Maybe it's positive work, maybe it's negative work. It is affected on your behavior. Then workplace, कामा करण्याची जागी. Moreover, it also counts the social circle an individual has. Our friends, parents, colleges, co-worker, bosses, everybody plays a role which determines our personality. ती जी वागणूक करतात त्या वागणुकीला स्वीकारणं इज अ पर्सनॅलिटी एन्व्हायरमेंटल फॅक्टर म्हटलं जातं. देन physical factor. Physical factor means physical factor of personality. Just environmental factor. This is the many physical factors as well as that determine our the personality. This physical factor including overall physical structure of a person, his, her, height, weight, color, sex, beauty, and body language. In short, ह्याच्यातच तुम्हाला उत्तर भेटणार असेल. सुंदर दिसणं, बॉडी बिल्डर बनणं, well language speaking, spoken, English spoken, non-English spoken, good personality, hairstyle, body style, your color, your sexual behavior, beauty, your body language, your attitude, your personality, all things, your personality, behavior, your physical views, your habits are main affected on you. And individual personality can change over time. प्रत्येक वेळ चेंज होते physical factor, and one of the major reasons that most our physical structure change for time to time. आणि हे का होतं की आपलं वेळेप्रमाणे आपलं फिजिक्स चेंज होतं. इट मीन्स युअर बिहेवियर आर चेंज. चाइल्डहुड बिहेवियर, then growth of behavior, then your elder age behavior are different. Then the last point of your this point is situation factor of personality. म्हणजे सिच्युएशन प्रमाणे आपण पर्सनॅलिटीला कसं डायव्हर्ट करतो. Although this factor is do not the literacy create shape an individual, personality situation factor is do alter the person behave and response to time the situation. In short याच्यात काय बोललेलं आहे की आपण कुठल्याही व्यक्तीला देणारा रिस्पॉन्स कुठल्या सिच्युएशन मध्ये देतो. वाईट अवस्था आहे त्यावेळी कसं वागतोय, खुशी का माहौल है उस वक्त कैसा है, दुख का माहौल है उस वक्त हम कैसे ले रहे हैं, किसी की मैयत पे जा रहे हैं और हंस के आ रहे हैं, इट इज गुड बैड नो. किसी की मैयत पे जाके शांति से रहना चाहिए. किसी की शादी ब्याह में जा रहे हैं और उसकी चुगली करके आ रहे हैं, इट इज सिच्युएशन फॅक्टर्स ऑन युअर पर्सनॅलिटी आणि त्याने तुमची वागणूक दिसून येते.
देन द मॉडेल्स, सम मॉडेल्स आहेत ज्याने आपण काउंट करू शकतो. ते 4-5 मॉडेल आहेत त्याच्यावर आपण डिस्कस करणार आहोत. And these models are the big 5 models, personality models. The personality research, the propers, the first is extension. Extrusion. What is extrusion? These tired, including the characteristics such as excitability, sociability, talkativeness, assertiveness, and high amount of emotion expensive. म्हणजे एक्सट्रुएशन्स कशावर कॅल्क्युलेट होणार आहे तर त्याच्यात कुठले कुठले कॅरेक्टरिस्टिकला तो काउंट करतो. एक्स्टॅबिलिटी म्हणजे तुमच्यात ऍक्सिस काय आहे, मॅक्सिमाइज काय आहे. देन सोशबिलिटी, सोसायटीमध्ये बिहेवियर काय आहे. टॉल्केटिव्हिटी म्हणजे बोलण्याचं चालण्याचं व्यवहार कसा आहे. असर्टिव्हन्सी मीन्स असर्टन्स काय होतो, असर्टन्सी म्हणजे पॉझिटिव्ह तुमचा जो इफेक्ट आहे तो निगेटिव्हिटीवर किती इफेक्ट आहे, असर्टन्स किती होतं, असरअंदाज किती होतो. देन हाय अमाऊंट ऑफ इमोशन, आणि इमोशनल तुम्ही किती हाय अमाऊंट आहात. हाय इमोशनल अमाऊंट एक जो असतो तो इमोशनल ब्लॅकमेल होतो, जो प्रॅक्टिकल असतो त्याला काही इफेक्ट होत नाही. देन द सेकंड मॉडेल इज agreeableness. Second module is agreeableness. What is agreeableness? This is a personality dimension including attributes such as trust, cooperative, kindness, affections, and possibility behavior. कशावर आहे तर such including attributes such as trust म्हणजे सत्य, सांभाळून घेणं, दुसऱ्याचा व्यवहार बघितणं, त्याला सांभाळून घेणं, आणि आहे सच्चाई, भरोसा, एहसास, इन चीजों पे जो बनता है उसे एग्रीबलनेस बोला जाता है. इसके ऊपर उसको काउंट किया जा रहा है. देन थर्ड वन किसके ऊपर है, कॉन्सियसनेस. कॉन्सियसनेस में किससे होता है, कॉमन फैक्टर फीचर ऑफ द डायमेंशन इंक्लूडिंग द हाई लेवल ऑफ thoughtfulness with the good influence control and the goal direct to the behavior. Those are the high consumptions tend to the responsibility, organized and depending on the personality presentation. The dimension of measure of the reliability. Neuroscience. Individual high in the trade, tend in the expensive, emotion, activity, moodiness, irritability and sadness. न्यूरोटेस्ट म्हणजे मूडवर आहे. कुठला मूड आहे तर एक्सटेन्सिव्ह मूड्स, मुडीनेस मूड, त्यानंतर इरिटेट किती होता, अँड सॅडनेस दुःखित किती होता. पीपल विथ द पॉझिटिव्ह इमोशन स्टॅबिलिटी टेन विथ द क्लाइंट, सेल्फ कॉन्फिडन्स अँड सोर्स. आणि जो पॉझिटिव्ह असणार आहे ह्याच्यामध्ये ते कशामध्ये येणार आहे, सेल्फ कॉन्फिडन्स. बिकॉज द निगेटिव्ह सोर्स ऑफ द न्यूरिशन्स एनिमेशन इज डिपेंड. देन ओपननेस मध्ये काय येणार आहे, these are the characteristics. They are the train, the characteristics such as imagination in incitation through the high in the trial also tend have the board of range. याच्यामध्ये ओपन इंडेड पब्लिकला कॅल्क्युलेट केलं जातं, एक ओपन वातावरणामध्ये सोडलं जातं आणि तो कसं वागतोय, कोणाकडे काय करतोय, हे सिंपल हे कॅल्क्युलेट केलं जातं. एवढं समजून घ्या. ह्याच्यानंतर जर न्यू पॉईंट जो चालू होतोय त्या पॉईंटवर आपण डिस्कस करणार आहोत. सिंपल ह्याच्या आधी आपण ह्याच्यावर डिस्कस केलेलं आहे. and this point are attitude. This point are attitude. The compensation also ABC attitude. The attitude म्हणजे एक कुठल्याही पर्सनचा. The attitude how affected the cognitive and behavior वर आहे. आता कुठल्या पार्टचे attitude असतात तर टू पार्ट ऑफ attitude ह्याच्या आधी मी सांगितलंय. फर्स्ट इज negative attitude and second is positive attitude. In the negative attitude cast, my boss did not give me the promotion. He have to promote to another colleague. So I feel I deserve. ह्याच्या आधीच मी एक्सप्लेन केलं पीपीटी टाइम इन द फर्स्ट और सेकंड लेक्चर कि हम हमारे काम की वजह से जो हम पे इफेक्ट हो रहा है उसको हम किस पार्ट से देख रहे हैं, हम किस पार्ट से देख रहे हैं. इट नोन एज योर एटीट्यूड. तुम्हारा बॉस तुम्हें नहीं तो तुम्हारे फ्रेंड को प्रमोट कर रहा है, तो हम फ्रेंड को कांग्रेस तो कर रहे हैं बट दिल के दिल में बॉस के लिए गालियां देने तैयार कर रहे हैं. बिकॉज कि तुम्हारा प्रमोशन नहीं हुआ, तुम फुलफिल नहीं हुए, तुम जो रिस्पॉन्सिबल थे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें नहीं मिली. इट इज द बैडनेस विथ यू, योर गुडनेस विथ यू, आई डोंट नो, बट इट इज इफेक्टेड ऑन योर एटीट्यूड. एंड पॉजिटिव, माय बॉस गिव मी अ प्रमोशन, तुम्हें एज कम्पेयर टू तुम्हें मिला है एंड तुम प्रमोट हुए, तुम्हें खुशी हुई है और तुम उससे ज्यादा खुश होकर ज्यादा काम करोगे. इट इज इफेक्टेड ऑन योर बिजनेस. इट इज पॉजिटिव एटीट्यूड. ब्रीफली उसको एक्सप्लेन करते हैं. Conjugative component. क्या है conjugative? The conjugative component is based on the belief information about the particular person or an object.
इसमें क्या होता है कि किसी पर्सन के बारे में कंप्लीट डिटेल होती है। कौन से पॉइंट पे हम डिस्कस कर रहे हैं? ऑन दिस पॉइंट। ये जो एटीट्यूड पूरा सर्कल बना हुआ है तो तीन तीन चीजों पे है। एक कॉन्जिक्यूटिव यानी तुम्हारी कंप्लीट डिटेल जो हमारे पास होती है, देन उसमें से इफेक्टिव, उन डिटेल्स में से कौन सा इफेक्टिव पार्ट है और उसका इस्तेमाल करके हम तुमने जो बिहेवियर चेंज लाते हैं, इसको उसने एक्सप्लेन किया है। The consecutive component is based on the belief of information about a particular person on the object. Belief are based on the verification, learning, expenses, realms, misunderstanding of any other information. Belief are the accepted factor of truth about a person on an objective in the above figure. The employee believe that the boss is based on the case positive attitude. Employee believe in his boss is give fair judgment. Then the consecutive component something that refers our opinion. It means त्याने एक वर्ड दिलं ना ओपिनियन. आपण जर आपल्या स्टाफ बद्दल ओपिनियन स्टाफ बद्दल जमा करतो आणि त्या ओपिनियनने आपण कमांड करतो की नेक्स्ट ईयर विच वन इज बेस्ट फॉर मी, और जो बेस्ट होगा उसको हम ज्यादा कंटिन्यू करते हैं. और ये कैलकुलेशन किस पे है? द कॉन्जिक्यूटिव कंपोनेंट इज बेस्ड ऑन द बिलीफ इंफॉर्मेशन. किसके ऊपर है? कंप्लीट बिलीफ और इंफॉर्मेशन अबाउट द पर्टिकुलर पर्सन जिसको हम सिलेक्ट करें उसकी पूरी एक्सप्लेनेशन. देन द सेकेंड पॉइंट इज इफेक्टिव कंपोनेंट. अब इन डिटेल्स में से कौन सी इफेक्टिवनेस है? द इफेक्टिव कंपोनेंट कंसिस्ट ऑफ द फीलिंग, sentiments and emotion of a person has toward to object. वो काम के रिलेटेड कितना दिल लगाता है, कितने दिल से वो काम करता है, वो कितना सेंसिटिव रिलेटेड टू वर्क है, उसके इमोशन उसके रिलेटेड क्या है, उसके रिलेटेड जो ऑब्जेक्ट है वो इंडिविजुअल ऑफ द सिचुएशन और कौन सी सिचुएशन में कैसे ऑब्जेक्ट करता है. दिस कंपोनेंट concurrent with the evaluation and emotions often the expenses like dislike goods or bad. अब इसमें क्या होता है कि हम किसी काम को कितना वैल्यू दे रहे हैं, कितना लाइक कर रहे हैं, कितना डिसलाइक कर रहे हैं, कितना एक्सेप्ट कर रहे हैं, कितना रिग्रेट कर रहे हैं एंड ऑल. आर यू अंडरस्टैंड? इज ए इफेक्टिव कंपोनेंट. देन द कंटिव कंपोनेंट. कंटिव कंपोनेंट यानी बिहेवियर. सिंपल कंपोनेंट ये तुम्हारा बिहेवियर. कंटिव कंपोनेंट इज अ concurrent with the behavior टुवर्ड्स समवन और समथिंग. कोणाबद्दल आपली कशी वागणूक आहे, पुढे आम्ही कसे आगलावीचे धंदे करतो, एकमेकाबद्दल कसं चढवून सांगतो, ह्याला त्याने कंटिन्यू कंपोनेंट बोललेलं आहे. ओके. अँड दिस थ्री कंपोनेंट आर युअर निगेटिव्ह और पॉझिटिव्ह. आणि ह्या दोघांमध्ये ह्या दोघां तिघांवरून हे तीन कंपोनेंट दोन पार्ट जनरेट होतात. व्हॉट इज निगेटिव्ह कंपोनेंट अँड पॉझिटिव्ह कंपोनेंट. अँड द नेक्स्ट पॉइंट of your study is sources and formation of attitude. Sources and formation of attitude. There the first is direct expensive. First is kutla source आहे direct expensive. The direct expensive with an objective of a personality play important part of the information, the attitude of a person. People develop attitude from a personality, belief, expenses as well as punishment expenses. For example, consider a cook who has searched 2 months for a new food processor only to simple सांगतो बघा. डायरेक्ट एक्सपेन्सिव्ह मध्ये काय आहे? ऑब्जेक्टिव्ह द पर्सन प्ले इम्पॉर्टंट पार्ट ऑफ द फॉर्मिंग. ह्याच्यामध्ये तो मेन पार्टला काम करतोय आणि तो त्याच्यामध्ये निराश झालाय तर जो इफेक्ट होणार है, अगर वो किसी मेन पार्ट मेन ऑब्जेक्टिव वर्क के ऊपर काम कर रहा है और उसमें वो फेल हो जाए, अगर वो फेल हो गया तो उसके ऊपर जो इफेक्ट होने वाला इज डायरेक्ट एक्सपेंसिव या हाईली एक्सपेंसिव एटीट्यूड वर्क बोला जाता है. जैसा कि उसने बोला है, कंसीडर करो कि एक कुक है, वो एक खास डिश बनाना चाहता है, उसके लिए वो बहुत एक्सप्लोर कर रहा है, तो नंबर ऑफ फ्लेवर्स को यूज कर रहा है, बट उसको जब तक डिफॉल्ट या उसकी फॉल्ट नहीं दिखाई देता उसको टेस्ट नहीं मिलेगा. जब तक टेस्ट नहीं मिलेगा उसको वो लर्निंग करना है. Then the second expensive source is vicarious learning. Vicarious learning is also known as observation of learning of social learning or model of money making. ह्याच्यामध्ये आपण काय करतो? शिकतो की कसं केलं पाहिजे, काय केलं पाहिजे, किती प्रमाणे केलं पाहिजे, त्याने कसं करतो. मंकी डू. मंकी सी या मंकी डू म्हणजे माकडासारखं. त्याने माकडाला काय ते केलं नाही, माकडला आपण जसं करतो माकड तसं करून दाखवतो. अरे ती माकडाने टोपीची गोष्ट, त्याच्यामध्ये टोपी फेकतो, मग तो दुसरा टोपी फेकतो. इट लाईक दिस. Verifications learning occupation from observing learning and then
reading that the mean the people form the attitude by observing behavior of other and consequences. आता ह्याच्यामध्ये आपण काय लर्न करतो, द मेन पार्ट इज द समोरवाल्याचा ऍटिट्यूड काउंट करतो आणि त्याप्रमाणे आपण त्याच्याकडे वागायला जातो. तो जसा आहे तसा नाही. इज अ विक्युरियस लर्निंग. त्याने पण आपल्या ऍटिट्यूडला चेंज येतो. कसा चेंज येतो, जर तो छान वागणारा असेल तर आपण मग त्याच्याबरोबर छान वागायला लागतो, आपल्या पर्सनॅलिटीमध्ये चेंज. अगर वो अच्छा लर्निंग नहीं रहा, उससे हम कुछ सीख रहे, बुरा सीख रहे, सिगरेट पीना, दारू पीना, तो हम भी उसके साथ लग जाते हैं. The same attitude is there. Then family and peer group. एंड जिसके साथ हम रहते हो या जिसके साथ हम वक्त गुजार रहे हो, family and peer group also play the important role in formation attitude person during the childhood. पेरेंट आर द बेस्ट रोल मॉडल फॉर एनी चिल्ड्रन, है कि नहीं. बच्चों के लिए सबसे अच्छा एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड कौन ला सकता है, द पेरेंट्स, बिकॉज पेरेंट्स आर नो व्हाट इज बैड एंड व्हाट इज गुड. द एटीट्यूड towards an objective terms and believe in positive negative picked by the children quickly and easily. Such attitude is picked by even without the being the told about the objective, even the without having direct expenses. Economic status and occupation. इसके बाद जो मेन एटीट्यूड आता है वो किसकी वजह से आने वाला है, योर बिहेवियर, योर रेसिडेंशियल बिहेवियर, योर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. Our economic is occupation positive play important role to attitude formation. They determine in a part of attitudes toward the unions and management and about the belief certain law of good or bad. Social economics background influence the parents and future attitude. In short, आपलं इकॉनॉमिकल घरचं जो वागणूक असणार आहे, इट मीन्स काय म्हणतात, घराची परिस्थिती, इकॉनॉमिकल परिस्थिती जी असतो क्या माशी मिल्कियत या फिर अपनी जो क्या कहते हैं, जितनी कमाई होती है उतने में जो होता है उसके उसके ज्यादा भी करने जाएंगे तो हम पे निगेटिव इम्पैक्ट होता है कि हमें वो चाहिए चाहिए करके हम लोन पे तो लेते हैं, फिर होता नहीं. इट इज निगेटिव इम्पैक्ट ऑन यू. Then the next point is mass communication. Mass communication, various medium, mass communication, television, radio, ये भी affected है न्यूज़पेपर. अब ये कैसे affected है, वहां जैसे दिखाया जाता है हम वैसे रहने जाते हैं और खुद की चाल भूल जाते हैं. The magazine free that the attitude, large quantity of information, उसमें बहुत सी information रहती है, like presentation of news or information is considered, so act is the cutter attitude for advanced knowledge के लिए news देखते हैं. In turn, advance select the specific of the mass communication and the best reflected attitude. उसके बाद पॉलिटिकल, उसमें कौन के क्राइम देखते हैं, डाइवर्सिटी, डाइवोर्स देखते हैं, पॉलिटिक्स देखते हैं, रिलीजन देखते हैं, और इसके रिलेटेड जो हमें सिखाया जाता है बाय इस कम्युनिकेशन मीडिया, हम उस तरह से अपने खुद को डाइवर्ट करते हैं. देन द नेक्स्ट पॉइंट इज एटीट्यूड एट. अब कहाँ कैसा एटीट्यूड होता है, इट्स कॉल्ड द वे ऑफ एटीट्यूड एट द वे ऑफ प्लेस. तो एटीट्यूड एट वर्क प्लेस, जब वर्क प्लेस होता है वहां हमारा एटीट्यूड कैसा होना चाहिए. Workplace attitude play the very important or successful failure to organize as well saw the being very organized CEO. वर्क प्लेस में हमारा एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि सीईओ यानी हमारे टॉप लेवल से जूनियर तक, मिडल लोअर लेवल तक सब हमारे साथ खुश रहने चाहिए, सबके साथ हमें पॉजिटिव और इक्वालिटी रखनी चाहिए, लाइक यू आर एम्प्लॉय. ओके, अब उसमें भी कैसा होना चाहिए, इफ जॉब सेटिस्फेक्शन इज दैट, अगर तुम्हें काम पसंद है तो तुम ये कर सकते हो. Then job satisfaction. Job satisfaction refers the contentment. It is the status of mind. Job satisfaction refers one's feeling towards the one job. हमारी फीलिंग कैसी होनी चाहिए, एक काम के लिए यूनिटरी होनी चाहिए, क्या ये काम मेरे लिए और मैं यही कर सकता हूँ और ये कर सकता हूँ और करना चाहता हूँ. अगर तुम उस वक्त डाइवर्ट हो जाओ, नहीं ये वाला मिलता तो और ज्यादा कमाता, ये वाला मिलता तो और ज्यादा कमाता, ये करता तो अच्छा होता, यू आर डाइवर्ट, देन योर वर्क आर डाइवर्ट. और जब वर्क डाइवर्ट होता है then you are divert from your aim, your future aim, और तो future aim से divert होके हो जाता है. जब जॉब इन्वॉल्वमेंट, इन्वॉल्वमेंट यानी क्या किसी चीज को अपनी जॉब में इन्वॉल्व करना है. जॉब इन्वॉल्वमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल एसोसिएशन और हैज विद द जॉब, इट इज रिफर टू द degree with which is individual identify the psychologically with his or her. किसी जॉब के लिए हम जो डिग्रीज लेके जाते हैं, जो रिजल्ट्स लेके जाते हैं, वो उतनी
स्पेसिफिक है क्या मालूम करना चाहिए. अगर तुम्हें तब ले जा रहा है फिर भी बाद में तुम्हें खुद को डेवलप करना चाहिए. देन ऑर्गेनाइजेशनल कमिटीज job are involved that uh, refers to one the attachment of the job where the organization committee is impulse the employee identification with the particular organization. It is goal. It means goal दिए जाते हैं और उस goal को पार्ट करके देखो. It means तुम्हें एक अचीवमेंट दिया जाता है कि इतना काम करने के बाद तुम्हें मिनिमम द एम्प्लॉय ऑफ द ईयर मिलेगा. द एम्प्लॉय ऑफ द ईयर के लिए तुम्हें जो एम तैयार करने प्लान तैयार करना है, इट इज योर एटीट्यूड. अब ये कैसे होने वाला है? इफ द एटीट्यूड टू वर्क, तुम काम के लिए कैसा सलीका इस्तेमाल करते हो, attitude कैसा हो, सलीका या attitude is affected on you. Okay, then the next point is effective thinking. Thinking के ऊपर है. The thinking is the refer to the process the creative structure series and connectivity transaction between item providing the think is easy. सोचने के बारे में तुम क्या सोचते हो, कितना सोचते हो, क्यों सोचते हो, उसके ऊपर उसने बोला हुआ है. A thinking style is how the process information must effectively. तुम जितना अच्छा और प्रोसेसिव सोचेंगे, रिलेटेड इंफॉर्मेशन निकाल के लोगे, इट इज आई थिंक देयरफॉर आई, इससे ही बनता है. यानी ये मेरे लिए और मैं ये सोचूंगा तो ही होता है. These words are the great 17th century philosopher Rene Descartes. Rene Descartes ने बोला हुआ है. Is he illustrate that the importance of thinking we exist because we think that the prominent sign the human life in the thinking, whenever the awake of a sleep, where the awake of thinking. एक तो हमें सो जाना चाहिए या तो उसके बारे में सोचना चाहिए. Then voluntary and involvement of thinking. क्या है voluntary and involvement? Thinking is done voluntary, अकेले होता है, and involuntary यानी अकेलेपन में नहीं होता. A person may not think that deliberated all the time. They are the moment where he's not conscious what the thinking. कभी कभी वो पता ही नहीं रहता वो क्या सोच रहा है. It means गुम हो जाना. And there are time where he is consulting their deliberately our समाज. और उससे जो पॉइंट आउट होता है थिंक करने से जो कंक्लूजन आता है, इस कंक्लूजन को हम आइडिया बोलते हैं. Voluntary think may result in voluntary action. Involved thinking may or may not lead to the action. Dreaming in involving thinking is may not be result in action. समझा? अकेले में जो सोचा जाता है वो ख्वाब हो सकता है, हाँ, वो एक ड्रीम हो सकता है. और ड्रीम्स आर नॉट ऑलवेज बिकम इन वन. कोई ख्वाब हकीकत नहीं बनता लाइफ में. जो बनते हैं वो बनते हैं लेकिन सब नहीं बनते. तो वॉलंटरी थिंकिंग या खुद से अकेले में ढूंढना, उसको उसमें ड्रीमिंग बोला हुआ. व्हाई ड्रीमिंग आर नॉट बिकम्स टू, उसने बोला मे और मे नॉट बी लीड्स टू द एक्शन. वो सच में हो सकते हैं, उसका कोई भरोसा नहीं है. Our culture, biological, environmental expenses would our the thinking is help in the adapting the our physical and social environment. हमारी सोच जो होती है वो ऑलवेज सोच हमें किस पे इफेक्ट करती है कि हम उस सोसाइटी में कैसे रहेंगे. अब वो कैसा होता है, हम सोसाइटी के बारे में क्या सोचते हैं. योर थिंकिंग रिगार्डिंग टू द सोसाइटी, देन योर थिंग्स इज रिगार्डिंग टू द सोसाइटी. Mere thinking is sufficient. Thinking needs to the organize with need the systematically thinking one's mind to the get required reason. Systems think help in separating the importance for the uniqueness. System thinking and actors are fine. A style of thinking are different in different way, forms and types of thinking. The point, the first emerging monarchy style. इस स्टाइल में क्या है देखो, people who exhibit the monarchy style like to do one thing at a time. They are motivated by a single goal or need at a time. They are a single midnight concession only issue and access the situation. इसमें क्या होता है, हम एक ही बारे में सोचते रहते हैं और जब तक उसका कोई जवाब नहीं मिलता हम उसके अंदर घुसे हुए रहते हैं. और इतना घुसे हुए रहते हैं कि मेंटालिटी हैज डन दैट. ओनली फॉर्म ऑफ देयर व्यू पॉइंट, उसी पॉइंट के अंदर दूसरे व्यू से देखना ही नहीं चाहता. देन हेरची स्टाइल में क्या होता है, पीपल एग्जिस्टिंग exhibit in the hatching form of thing style like to do many things at once. यानी बहुत सी चीजें एक टाइम में सोचते हैं.
Sitting qualities, which is the do, when and how much टाइम ऑफ एनर्जी टू डाइवर्ट टू ईच, और उसके लिए हम हमारी बॉडी की नंबर ऑफ डाइवर्टिंग एनर्जी को डाइवर्ट करते हैं, थोड़ा इधर का सोचने में, थोड़ा उधर का सोचने में। ऐसे बहुत से लोग होते हैं तो बहुत सी बातें एक टाइम में सोचते रहते हैं और कुछ ना कुछ नया कर देते हैं। फिर हमको बोलते यार बाबा लक्ष कुठे आहे तुझं, ध्यान कुठे आहे तुझं, ध्यान किधर आहे तेरा, क्यों? बिकॉज द अप्लाइंग अ हायरची, देन ऑलिजिंग थिंकिंग। Next point is oligarch thinking. The people with oligarch thinking style do like do many things at once but have it trouble setting priority. अब वो बहुत सी चीजें एक टाइम में सोचते हैं लेकिन करने में वो कंफ्यूज हो जाते हैं। They might have the problem with the allocation of resources. क्यों? क्योंकि उनको प्रॉब्लम ये होती है कि सोचा गया है करना कैसा है, लेकिन किस चीज को पहले पुट करना है या किस चीज को पहले यूज करने से ये इजी होगा, इसमें वो फंसे हुए रहते हैं। Then the next point is anarchic style. Anarchic style में they like to take the random approach to problems. Dislike system, guidance, अब उसमें हम जो चीजें हमें पसंद नहीं, हम खुद भी उससे गाइडेंस लेते हैं और दूसरों को भी गाइड करते हैं, ये मत कर, ये होगा, ये मत कर, जबकि वो करने से कितने लेवल तक क्या होगा ये हम स्टडी करना नहीं चाहते। ओके, these are the point of your first complete module. Then the study is there. We have, thank you all of you. On this point, we are studying the effective thinkingness, attitude, briefly study of attitude, style of attitude, sources of attitude, formation of attitude, positive, negative attitude, then the big 5 personality models, then uske baad personality, factor affecting on personality and all. Thank you. It means तुम्हारे टेक्स्ट बुक के जो चैप्टर पर्सनैलिटी, एटीट्यूड, थिंकिंग, लर्निंग, इन पॉइंट का मिक्स वॉइस वैसा या स्टडी ली हुई है। इट मींस योर मैक्सिमम फर्स्ट मॉडल आर कवर हियर। ओके, फर्स्ट मॉडल में 4 चैप्टर है, पहले 8 लेक्चर में 3 और ये 4 ऐसे कंप्लीट ये फर्स्ट चैप्टर या फर्स्ट मॉड्यूल या खत्म हो रहा है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।